Hi guys, my name is Vaibhav Munjal and today I'm back with new recommendations. Before getting on to the recommendations, I want to tell you guys that we are now also on YouTube community. Just like you can contribute to us on Patreon, you can now directly contribute to us on YouTube also. I want to thank my 3 new YouTube community members, Hindol Harza, Sindhur Verma and Victor Summers. आप भी इनके जैसे हमें contribute कर सकते हैं and you can get access to our exclusive features like our WhatsApp group. So talking about the recommendations for the day, आज थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को कुछ रिकमेंड करना है बिकॉज आई बेसिकली वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन फिल्म मेकर. दिस इज़ अ ग्रीक अमेरिकन फिल्म मेकर जिनका नाम है एलिया कजान. आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस एपिसोड सिंस द इंसेप्शन ऑफ चलचित्र टॉक्स. मेरे को लगा था एक दिन बनाएंगे बिकॉज फॉर मी एलिया कजान हैज़ हैड अ वेरी 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 मेजर इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ एंड स्पेशली because I've read his autobiography जो यहाँ पढ़ी है and I think I should like show it to you guys. It's called Elia Kazan A Life. It's written by him. ये book मैंने पढ़ना चालू की थी when I had just shifted to Bombay. I had seen an interview of Richard Linklater where he had said like had I read Kazan's autobiography like a few years back, like 20 years back, I would have been a better filmmaker. And I was like चाहे कितनी भी महंगी हो मेरे को ये पढ़नी पड़ेगी. And it's not a easy book to read because it's like 900 pages long and उसमें बहुत छोटू सा लिखा है and काफ़ी आपको मतलब फोकस में आपको like दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, but it is so well written and I would say कि अभी अगर कोई 5 किताबें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा चेंज किया तो this is one of them. And technically I'll just talk about Kazan today and how reading his book how it like changed my life, and I'll also talk about his films. So Kazan Anatolian है और like वो उनका इस्तांबुल में like he was born in Istanbul and I don't know how many of you have heard of him, but आपने Streetcar नाम डिज़ायर के नाम तो सुना ही होगा एंड लाइक उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है. इनकी आपको एक स्पीच देखनी चाहिए जहाँ पे इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलता है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट स्पीच इज़ दैट 50% of the people did not stand up while the other 50% people were giving him a standing ovation. और ये बहुत ही conscious choice थी of the other 50% where they were like making faces और कुछ लोग ऐसे जाके बैठ गए कि नहीं हम तो खड़े ही नहीं होंगे. It's because इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है जिस वजह से a lot of people also hate Elia Kazan. So I don't know where to start from, but let's talk about like how Kazan like started it all. Kazan काफ़ी थिएटर बैकग्राउंड से हैं बिकॉज इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, एक्टर्स ग्रुप, जिसमें ही वॉज अंडर लाइक द मेंटरशिप ऑफ ली स्ट्रासबर्ग. Kazan का चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा यूनिक था बिकॉज लाइक अगर आप इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ेंगे तो राइट ऑन द 30th पेज ऑफ इट लाइक ही हैज़ रिटन कि एज अ as the writer of this autobiography, I have this very important decision to make. Should I tell something that I have never told anyone in my life? And then he tells it. And this is one story I tell every person I meet जिनको भी मेरे को लगता है कि कज़ान का जिन्होंने नाम सुना, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है. And that is one story which will make you realize कि कितना डिफरेंस है लाइक दी ऑटोबायोग्राफीज सम पीपल राइट, और कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा के लिए अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं या घोस्ट राइटिंग के थ्रू अपनी बायोग्राफीज करवाते हैं. बिकॉज कज़ान वॉज 78 years old when he wrote this and he wrote this without any filters. उन्होंने सबके नाम लिए हैं, उन्होंने मतलब कोई फ़िल्टर ही नहीं रखा अपनी एरोगेंस के बारे में, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, एक एक चीज़ इतना डेप्थ में लिखी है. So in like he goes so deep into love, into emotions, into infatuation, into the world of like film industry. So आपको एक बहुत ही holistic viewpoint मिलेगा when you will read this book. और मैंने जैसे एलिया कज़ान पे मैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड कर रहा हूँ, मैंने पास में एक जोई कज़ान पे भी एक्सक्लूसिव एपिसोड किया हुआ है और मैं तभी ये बोलना भूल गया था, मेरे को याद आया था शिट आई शुड हैव सेड इट. जोई कज़ान इज़ एक्चुअली द ग्रैंड डॉटर ऑफ एलिया कज़ान and someone once asked him, have you read his autobiography? And she said no because I have heard कि my papu बुलाती है उन्हें, my papu has written so many things in it जो उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं which I don't want to read क्योंकि I still want to see him in a way.
and it will just like ruin my image that I have of him in my mind. So, and Kazan was not a very likable person also. Like, he was very arrogant. He has like called out himself up for his arrogance in every 10 pages. But he also says कि कहाँ पे कैसे कैसे arrogance इनको कहीं कहीं work भी किया इनके लिए. So, इसमें ये पूरा इस चीज़ को depth में गए हैं. And like you can consider this book as my first recommendation. I revisit this book every time something is wrong in my life, mostly related to the profession. जब भी मेरा कोई शूट होता है, शूट से एक रात पहले मैं इसके कुछ ना कुछ लाइन्स पढ़ता हूँ, because I have underlined so many things. Like I'll read something to you. Like कोई भी random page खोलूँगा ना and something great is written on it. जैसे अभी एक पेज खोला है जिस पे लिखा है First, I determined to take charge of my own life, to find a way to live professionally in which all artistic decisions would be mine to make, to do what I wanted, not what other people expected of me. I was not like anyone else, and I was not going to do what anyone else did. It would take time, but I would find my own path. And some more. I believed my days in that town and in that industry were over. So he also talks about like the whole LA versus New York thing a lot, because he was into stage plays ka direction, and he was also into film direction. So how he had to like balance those two things, और उसमें कैसे उनको दिक्कत हुई थी. एक और जैसे what was I if not a filmmaker? Reader, I don't seek your favor. I have been telling you only some of the things I have been asking myself on the way down. So इसमें 200 पेज like in these 900 pages are like dedicated to the witch hunt that happened in 1950s, जब खजान का नाम आया था. जो भी कम्युनिस्ट थे तब उनके उन्हें नाम लेने पड़े थे, एंड इनको रैट बुलाया गया था. लाइक ही वॉज लाइक अ स्क्वीकर और अ रैट, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के नाम बताए थे जो ब्लैकलिस्ट हो गए थे, एंड खजान बच गए थे बिकॉज लाइक ही जस्ट सेट कि कौन कौन कम्युनिस्ट के जैसे ऑपरेट कर रहे थे. इसकी वजह से बहुत लोगों ने इनसे बात करना बंद कर दी थी, एंड ऑस्कर्स में भी आधे लोगों ने इसलिए ताली नहीं बजाई थी. But he has tried to go down in the roots of it, कि whatever I did, was it right or what was it wrong. और इन्होंने at the age of 78 वो चीज़ सोचने की कोशिश की और उसको logically examine करने की कोशिश की है. And with him you also do the same. और and it's up to you to like see कि क्या आपको लगता है कज़ान ने जो अपनी लाइफ में किया था by naming names, क्या वो सही था या क्या गलत था. So he has also written कि मैंने जो किया शायद वो गलत था, बट अगर मैं ये नहीं करता तो जो दूसरा ऑप्शन था वो और भी गंदा था. सो ही इन अ वे चोज वन ऑफ द लेसर इविल्स as written by him. Or Kazan was the person who discovered Marlon Brando. He was the person who discovered James Dean. Like I also want to recommend A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire was the I think the debut film of Marlon Brando. और इसमें वेवन ली भी हैं. ये टेनेसी विलियम्स के एक प्ले पे बेस्ड है. टेनेसी विलियम्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है इस बुक में, बिकॉज टेनेसी विलियम्स एंड कज़ान वर ग्रेट फ्रेंड्स. पहले इन्होंने स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर का प्ले किया था, फिर उसको था कि इनको इसकी एक मूवी भी बनानी है, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया. एंड इट्स अ ग्रेट फिल्म दैट यू शुड वॉच फॉर द एक्टिंग, फॉर द राइटिंग, फॉर एवरीथिंग, फॉर द ओवरऑल टेंशन बिल्डअप, और आप अग्रेशन कैसे ऑन स्क्रीन दिखा सकते हो. इट्स अ ग्रेट फिल्म. बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा बिकॉज द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, बोथ द प्ले एंड द फिल्म आर वेरी वेरी फेमस. One more recommendation I have is a film called Gentleman's Agreement. I think it came out in 1947 and he won the Oscar for this also. It's about this guy जिनको जूस के ऊपर एक रिसर्च करनी होती है कि उनको एंटीसेमिटिज्म की वजह से कितने इशूज़ फेस करने होते हैं, तो अंडर कवर एक जू बन जाते हैं टू सी कि क्या क्या उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है और कितना उनके साथ लाइक अत्याचार होता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स दैट आई सॉ ऑफ कज़ान, क्योंकि मैं जैसे किताब पढ़ रहा था, आई वॉज वॉचिंग हिज स्टफ. एंड अनदर रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ ऑन द वाटरफ्रंट. ऑन द वाटरफ्रंट is also like loosely based on a play written by play or a novel written by John Steinbeck. ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बट ये पोस्ट
द विच हंट ये मूवी आई थी, जब व्हेन ही हैड नेम्ड नेम्स. अब ये मान लो कि जब उनका ये जब व्हेन ही वाज कॉल्ड द रैट, अब ये मान लो उनका मी टू हो गया था एंड एवरीवन लाइक वाज लाइक ओ दैट इज कजान, आई डोंट लाइक कजान, सो नोबडी लुक्ड अप टू हिम. मार्लन ब्रांडो ने उनको ये बोल दिया था बिफोर द शूट ऑफ ऑन द वाटरफ्रंट, मैं तेरे साथ एक और पिक्चर बनाऊंगा एंड उस क्योंकि मैंने तेरे को कमिटमेंट पहले दे दी थी, बट उसके बाद आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन इन लाइफ. एंड मार्लन ब्रांडो नेवर टॉक टू कजान उसके बाद. एंड कजान ने ये लिखा है कि मेरे को समझ आता है कि ऐसा क्यों है वगैरह, बट बहुत उनको ये करना पड़ा था. बट मार्लन ब्रांडो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था ऑन द वाटरफ्रंट की वजह से. और ऑन द वाटरफ्रंट पे बेस्ड एक इंडियन फिल्म भी बनी थी परिंदा, जो विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट की है. एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट फिल्म, बट इट्स लाइक इंस्पायर्ड बाय ऑन द वाटरफ्रंट. ऑन द वाटरफ्रंट इज़ अबाउट दिस गाय जो एक काइंड ऑफ एक ड्रग लॉर्ड को यूनियन में उनके अंडर काम करते होते हैं, बट लाइक ही विटनेसेस समथिंग बैड वंस एंड ही डिसाइड्स टू गो अगेंस्ट हिज ओन बॉस. तो कजान ने ये भी लिखा है कि उनके साथ जो हुआ था ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो भी उनका सीन हुआ था, उसके बाद हाउ ही डिसाइडेड कि टू मेक ऑन द वाटरफ्रंट ऑन हिज ओन लाइफ बिकॉज ऑफ द बैड थिंग्स ही हैड टू फेस. सो वो थोड़ा एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. तो और एक और फिल्म है ईस्ट ऑफ ईडन जो आपको देखनी चाहिए. ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं. अमेरिका विच आई विल बी वॉचिंग दिस वीक. अमेरिका इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन फिल्म्स. ये आपको कजान की फिल्म देखनी चाहिए. सो कजान हिम इन हिमसेल्फ इज़ लाइक अ फिल्म स्कूल. इनकी किताब आपको पढ़नी चाहिए, इनकी सारी फिल्म्स देखनी चाहिए. मैंने इन पे ब्लॉग लिखा था लाइक आई थिंक 1.5 साल पहले, जब मैंने किताब पढ़ना ख़त्म की थी पहली बार. अभी मैं सेकंड टाइम ये किताब पढ़ रहा हूँ और काफ़ी लाइक मैं उसमें इमोशनल हो गया था बिकॉज लाइक कजान इन अ वे like I had my last paragraph I had written, Kazan reminds me of my grandfather. I have never met my grandfather, but मेरे को ऐसा लगता है कि whatever Kazan wrote in this book, it's like कि like I want to like become a even a bigger filmmaker. तो मेरे को ऐसा लगा था कि Kazan ये ज्ञान दे के गए हैं like my grandfather would have given कि देखो ये मैंने ये गलतियाँ की लाइफ में, it's up to you कि आपको ये करनी है या नहीं करनी, but this is like I'm giving you everything that I did in my life and this is what this book is about. So I get very emotional when I talk about Kazan because बहुत हेल्प मिली है मेरे को इसकी वजह से. एंड लाइक आई इन टफ टाइम्स ऑल्सो लाइक कभी कभी होता है कि like I open some random page and I'm like कि I can still survive in Bombay and I know I can still make it, like I can still survive, I can still sustain myself and I can still make it like to a bigger level. तो ये चीज़ें काफ़ी मेरे को कज़ान की वजह से इंस्पिरेशन मिली है and I think आपको भी मिलेगी if you like watch his stuff and read his book. But I quickly also want to mention कि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा सेक्सिज्म है क्योंकि लाइक इन्होंने बहुत जगह लाइक वेमेन को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया है. बट मेरे को लगता है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ोगे जो इस टाइम की है तो वो कल्चरल एक डिफरेंस है. जैसे आजकल एक डिस्क्लेमर आता है मूवीज़ में कि अलग अलग कल्चर्स की बात है. आज की डेट में जो हमारी इन चीज़ों की समझ है वो ज़्यादा है, वो तब नहीं थी. सो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लाइक रीड दिस बुक ऑब्जेक्टिवली एंड लाइक डोंट ट्राई टू मेक एनी जजमेंट्स. आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से पार्ट पे ध्यान देना है, कौन से पार्ट पे ध्यान नहीं देना है. बिकॉज उसके अलावा दिस बुक इज़ अ गोल्ड माइन. तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एंड आपको कज़ान की और सारी फिल्म्स देखनी चाहिए. एंड देन इट्स अप टू यू कि if you want to like Elia Kazan or not. So this was my recommendation for the week. Tune in next week for more recommendations. Thank you.